So this recording is paid recording for 10 a.m. batch. If any other batch wants this same recording, you need to make some payment for that. Not payment in the mode of like chocolate or something can be offered to me. I will be happy with that. So this is disclaimer of this. Disclaimer when any video start disclaimer comes. This is the disclaimer. Anyone who is watching this recording, genuinely, I will even give my address. Genuinely, send a chocolate on this address. Good one. Anyway, so I was talking about happiness. और पहली चीज which kills happiness is anger. और anger has become so natural. Nowadays people say गुस्सा तो आना ही था. Right? बड़े बुजुर्ग होते हैं ना. If you do something wrong, they get angry. Any other person say गुस्सा मत करो. They say गुस्से वाली तो बात थी. You also get angry. बोले गुस्से वाली तो बात है. He lied to me. Yeah, he did cheating on me. गुस्सा has become so natural. If anger is natural, इसका मतलब उस situation पे सबको गुस्सा आना चाहिए. Means same situation. जैसे भूख नेचुरल है तो भूख सबको लगती है. रोटी खाने से भूख सबकी खत्म होती है. राइट? वो तो है नेचुरल. अगर गुस्सा भी नेचुरल है तो सेम चीज सेम इंसिडेंट सबको गुस्सा करेगा. मतलब एवरीवन विल गेट एंग्री ओवर द सेम इंसिडेंट. दे शुड बी देयर, बट ऐसा होता नहीं. लेट मी शेयर एन इंसिडेंट. Two women coming out of the Mercedes and the Jaguar, one from the Mercedes, one from the Jaguar, coming out of the car, step out. They're flashing their high heels, the shining high heels, wearing black colored shades, glasses, hair has some puff on it, and having a glorious handbag, and their dress is shiny, walking like they are walking on a ramp. Say, bra, akad ke chal. Entering on restaurant. Good, very nice, genuine, decent restaurant. As they enter, they say, "Oh, smell is not good at all." Both have the same expression. They sit at the table. Such a huge and a big restaurant cannot keep the table clean? How bad? No, not good. At the same time, the cockroach comes, sits on the one woman's shoulder. Woman shouts, "This restaurant will be sued. This is not clean, neat and clean, and this cockroach has come." Yeah, cockroach, poor cockroach, बेचारा cockroach डर जाता है. Flies from the shoulder, goes to the another woman's shoulder. Then another woman shouts, "You are not my friend. You flew this cockroach to me. You threw this cockroach at me. I will sue this restaurant. Our friendship is over." And blah 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 blah. Poor cockroach again gets afraid and goes and sit on the shoulder of a waiter passing. Waiter remains calm. He goes out of the restaurant through the cockroach and comes back. Now, if anger is natural, उसी सिचुएशन पे गुस्सा आया उस औरत को, फिर दूसरी औरत को, बट वेटर को नहीं आया. इसका मतलब एंगर इज नॉट नेचुरल. एंगर इज अ रिजल्ट ऑफ आवर रिएक्शन. देखो, अंडरस्टैंड इट. ई मीन इवेंट. जिंदगी में कोई भी इवेंट होता है, क्या होता है? ई होता है. ई स्टैंड फॉर इवेंट. अब इवेंट होगा तो आप उस पर रिएक्ट करोगे. आर होगा. आर होगा, ई प्लस आर लगाते हैं, आउटकम, उसका रिजल्ट आता है. ई प्लस आर इज इक्विवेलेंट टू ओ. मतलब इवेंट हुआ, कोई घटना घटी, उस पर आपने रिएक्ट किया, फिर उसका आउटकम आया. अब उन दोनों औरतों का क्या आउटकम आया? दे लॉस्ट द हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट
और पूरा दिन उनका मूड खराब रहा क्योंकि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ और उन्होंने गुस्सा किया, राइट? तो रिजल्ट क्या था? बैड मूड, मतलब ये आउटकम क्या है? बैड मूड, कंप्लीट डे एंड एनर्जी लॉस्ट। यस। अब उस वेटर के साथ क्या हुआ? आउटकम वाज नॉर्मल एंड नेचुरल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी जिंदगी वैसे ही चली। अब मुझे बताओ, क्या इस इवेंट को चेंज कर सकते हैं? No, sir. क्या ये आउटकम को चेंज कर सकते हैं? यस। कैसे? क्योंकि ये आर चेंज करना होता है। इट मींस हम जिंदगी में होने वाले इंसिडेंट्स को तो चेंज नहीं कर सकते, बट उन इंसिडेंट पे रिएक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम उन इंसिडेंट पे कैसे रिएक्ट करना है इसको चेंज कर दें तो क्या होगा? द रिजल्ट मतलब आउटकम विल गेट बेटर। अब नाउ टेल मी, हैप्पीनेस is in the hand of incidents or is in the hand of our reaction? Reaction. Then it simply means anger is not natural and happiness is our choice. Simple. Happiness is our choice. और सबसे ज्यादा ये चॉइस वेरी करती है हमारे एटीट्यूड पे, क्योंकि एटीट्यूड वेरी करता है, एटीट्यूड डिसाइड करता है आपके रिएक्शन को। आप किस चीज को किस तरीके से देखते हो उसी से तो डिसाइड होगा कि आपका रिएक्शन क्या होगा। एग्जाम्पल, मिसिज मेहता कम्स माई होम, आई थिंक 5 years before. She lives 5 houses away from me. She says, we are throwing a grand party in our house today in the evening and you are invited. मैं पूछने ही वाला था पार्टी का रीजन क्या है, इतने शी लीव्स। मुझे इतने शॉर्ट नोटिस में पार्टी इनविटेशन, चलो आवर फैमिली गॉट रेडी, हम सब शाम को पहुंच गए और फिर देखा इट्स अ ह्यूज ग्रैंड पार्टी। जैसे उनके घर में एंट्री किया, पूरा जो उनका डुप्लेक्स घर बना हुआ है, तो उनका एक बड़ा आलीशान तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ पार्टी के लिए। मैंने एक दो और अपने नेबर से पूछा, जो एक दो और वहाँ पे नॉन लोग थे, उनसे पूछा यार ये पार्टी क्यों? तो मिसिज किसी को भी नहीं पता था, किसी ने सोचा कि मिसिज मेहता की आज वेडिंग एनिवर्सरी होगी। बोले वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाएंगे, मिस्टर मेहता को गुजरे 5 साल हो गए। बोले फिर क्या हो सकता है, आज उनका बर्थडे हो सकता है। बोले नहीं, बर्थडे तो उन्होंने पिछले महीने मनाया था, हर महीने कैसे जन्मदिन आएगा? उनके बच्चे का जन्मदिन होगा, उनके बच्चे का जन्मदिन कैसे होगा, वो उन्हीं के जन्मदिन के साथ आता है। सब हो गया, एवरीबडी वाज क्यूरियस। इतने मिसिज मेहता आई स्टेयर से, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ ज़्यादा, मैं पहुंच गया। मैंने कहा मिसिज मेहता पार्टी का ओकेजन क्या है? मिसिज मेहता का आंसर, आज आपको याद है मैंने मर्सिडीज बेंज ली थी? मैंने कहा हाँ, वो डेट भी ना पहले आपने बेंज ली थी शायद 95-96 लाख रुपीज की। बोले हाँ, बाय द वे 1 करोड़ 6 लाख की थी। आज सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया, कबाड़ में बदल गई। मैंने कहा आप उस शौक में 1 करोड़ रुपए की गाड़ी कबाड़ में बदल गई और आप कह रहे हो? मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी 100% क्लेम नहीं देती, 10-15 लाख रुपए कम ही देगी। बोले हाँ मुझे पता है। मतलब फिर भी पार्टी दे रहे हो आप, ठीक तो हो, चलो हॉस्पिटल चले। बहुत नेचुरल चीज है भाई, इतना नुकसान हो गया और पार्टी दे रही है। बोले बट उसमें बैठा हुआ इंसान जो ड्राइव कर रहा था उसको कुछ नहीं हुआ, वो मैं थी। तो मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि मैं बच गई, मैं सही सलामत हूँ, मुझे खरोच तक नहीं आई, या इस बात पे उदास होना चाहिए कि मेरी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खत्म हो गई। उस 1 करोड़ में से क्या 80 लाख 90 लाख कुछ तो कंपनी दे देगी, बट अगर मेरी जान चली जाती तो पैसे का भी कर सकते। ये उनका क्या है? एटीट्यूड, चीजों को देखने का नजरिया, परसेप्शन कहते हैं इसको। नाउ टेल मी, इवेंट, ऐसा इवेंट आपकी जिंदगी में तो बहुत हुआ है, बहुत सारे, कई बार बाइक गिर गई, कुछ चोरी हो गया, मेरी जिंदगी मेरे साथ भी हुआ। ईयर 2007, 10 जुलाई 2007 को मेरी गन पॉइंट पे रॉबरी हुई, बहुत बुरा लगा। बस उससे एक डिसीजन ले लिया कि बहुत जल्दी अब हिसार अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करना है। पहले मैं हिसार अप डाउन करता था बाय बाइक 45 to 50 किलोमीटर। मैंने बहुत जल्दी अब हिसार शिफ्ट ही कर जाना था। इवेंट तो हुआ बट उस पर रिएक्शन क्या थी?
शिफ्ट करना है, डिसीजन वाज बेटर। दो डिसीजन हो सकते थे, या तो हिसार में शट डाउन कर दो, अपने गांव में आसपास कहीं कुछ करो, बाहर नहीं जाना, या फिर हिसार शिफ्ट हो जाओ। तो रिएक्शन क्या हुआ, हिसार शिफ्ट हो गए। हिसार शिफ्ट हुए, ईयर 2013 के अंदर 14 में मेरे घर में चोरी हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जिंदगी में। तो घर में चोरी हुई, उसी घर को अभी अभी रेनोवेट कराया था इसी साल, उसके ऊपर कुछ पैसे लगाए थे, कोई बेचने का मन नहीं था। पर चोरी के बाद मम्मी का मन नहीं लगा, मम्मी कहते कि ये घर बेच देंगे, और मैं मम्मी को 3 साल से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, अपा इस मोहल्ले में नहीं रहते, बेच देते, सेक्टर में चलते। मम्मी वाज नॉट रेडी। चोरी हो गई, चलो 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, थोड़ा सा इमोशनल भी आदमी हो जाता है, बट उसका फायदा पता है क्या हुआ, मम्मी वाज रेडी टू सेल दैट हाउस। अगर आज भी उस घर में रह रहे होते, प्रॉपर्टी का रेट उस जगह बढ़ा नहीं, वो अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी तो आज 40 लाख की हुई है प्लस। जहां हम आ गए वहां पे 5 गुना बढ़ गया। तो फायदा, इवेंट तो हुआ, एक तो उस इवेंट को याद करके मैं रो, एक उस इवेंट को याद करके मैं अच्छा महसूस करूं, उसमें क्या बदला, क्या उस इवेंट पे रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स देता हूं मैं उस इवेंट को, दैट चेंजेस एवरीथिंग, दैट चेंजेस योर एंगर इनटू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस इनटू एंगर। ऐसे जिंदगी में since my childhood there have been couple of things, but your response matters a lot. How do you respond to the simple things? How you might have heard about one woman traveling by a train for the volleyball. Some boys try to snatch her chain. उस लोग कोशिश करते हैं कि चेन स्नैच कर ले ट्रेन में, तो उनसे वो हाथापाई करती है, बचाने की, अपने आप को बचाने की, चेन को बचाने की कोशिश करती है, और नीचे गिर जाती है ट्रेन से। जैसे नीचे गिरती है, ट्रेन उसकी टांग से होकर निकल जाती है। लगभग शाम का 8 बजे का समय होगा, सुबह 6 बजे उसको ट्रेन से की पटरी से उठाया जाता है। तब तक टोटल 42 ट्रेन जा चुकी होती हैं, घुटने में कीड़े पड़ चुके होते हैं। उसको जब सब फिर वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, 2.5 महीना कोमा में रही। कोमा से जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि पाँव नहीं है। डॉक्टर कहता कि इवन पाँव के साथ साथ तुम्हारी बैकबोन भी इंजर्ड है, पूरी जिंदगी चल नहीं पाओगी, व्हील चेयर पे बैठी रहोगी, खड़ी नहीं हो पाओगी। उस औरत को तो सोचना चाहिए बस जिंदगी खत्म। वो पता क्या कहती है, चलो अब इतना कुछ हो गया है जिंदगी में, अब तो इतिहास रचने का टाइम है। अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में माउंट एवरेस्ट चढ़ती तो मेरा नाम ना आता, अगर इस सिचुएशन में मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गई तो मेरा नाम आ जाएगा। वो चली गई विजेंद्री पाल, इंडिया की फर्स्ट वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। उनके पास कि मेरे को ट्रेनिंग दे दो, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। विजेंद्री पाल ने उसकी कंडीशन देखी, बोला इस कंडीशन में अगर तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो इसका मतलब, सोच भी लिया तुमने तो इसका मतलब माउंट एवरेस्ट तो चढ़ी गई, सिर्फ अब डेट और भारत का झंडा लहराना बाकी है। माउंट एवरेस्ट चढ़ी, 2012 के अंदर उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। बहुत कॉमन स्टोरी है, मैंने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसलिए नहीं बताई, फटाफट खत्म कर दे इसको, नहीं तो इसी को मैं आधे घंटे में भी बता सकता हूँ। अरुणिमा सिन्हा तब हुआ तो सही, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। वॉलीबॉल प्लेयर, नेशनल लेवल प्लेयर, क्या हो गया, जिंदगी खत्म सी हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे, बट उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। अगर वो इंसिडेंट ना होता तो वॉलीबॉल प्लेयर इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं होता। वॉलीबॉल प्लेयर इंडिया में पद्म भूषण अवार्ड नहीं जीतते। वॉलीबॉल प्लेयर के ऊपर बहुत जनरली इस तरह की कोई स्टोरी, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बनती है ना। होता क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट कि उसने ये कर दिया हम भी कर सकते हैं, नहीं। सोचना है, इवेंट तो हो गया, रिस्पॉन्स क्या रहेगा, बिकॉज रिस्पॉन्स डिजाइन्स योर एंटायर लाइफ। गुस्सा, कंफ्यूजन या खुशी सिर्फ एक ही चीज से पैदा होती है, आपके रिस्पॉन्स से। इंसिडेंट तो होगा, इवेंट तो होगा, इस इवेंट के ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। 2 भाई एक ही घर में रहते थे, सेम घर में पले बड़े, सेम घर में उनका पूरा जीवन चला। एक पियक्कड़ बीवी को मारता है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, गली में लेटा रहता है। दूसरा आज बढ़िया इज्जत है, अलग से उसने अपना घर बना लिया, वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, वाइफ अपनी अच्छी रेपुटेशन को होल्ड करती है, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छा पैसा है।
किस मेरे जैसे इंसान की माँ का शंका, सोचा यार दोनों सगे भाई हैं, दोनों में इतना फर्क क्या है, पूछते हैं। पहुंच गए छोटे भाई के पास जो वेल सेटल्ड है। प्रेरणा कहाँ से मिली? बोले पिताजी से। बड़े के पास पहुंचे, बोले तुझे ये प्रेरणा कैसे मिली, पी के जो पड़ा रहता है इधर उधर? बोले पिताजी से। एक आदमी दो लोगों को कैसे प्रेरित कर सकता है? दो अलग अलग चीजें करने के लिए। छोटे के पास गए, बोले कैसे मिली प्रेरणा ऐसे भाई? तुम्हारा भाई भी कहता है उनको पिताजी से प्रेरणा मिली, कैसे? बोले मेरे पिताजी दारू पीते थे, मम्मी की पिटाई करते थे, हमको स्कूल नहीं जाने देते थे, सेम हालात थी जो भाई की है। मैंने शुरू से ही सोच लिया था मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ ऐसा रेट नहीं करूंगा, मैं इज्जत कमाऊंगा, बेइज्जती नहीं। बड़े भाई के पास गए, तुम? बोले मैंने पिताजी को हमेशा करते हुए ये देखा, सोचा कि हमेशा पिताजी की तरह बनूंगा, वही हूं। एक ही आदमी दो अलग अलग प्रेरणा उस आदमी ने दी, क्योंकि प्रेरणा देने वाला मैटर नहीं करता, प्रेरणा लेने वाला मैटर करता है कि आप उसको किस एंगल से देख के उससे जी रहे हो। तो यहां पे भी क्या हुआ, इवेंट तो सेम रहा, रिस्पॉन्स बदला। अगर आपका रिस्पॉन्स बदल जाए तो आउटकम बदल जाती है। पीपल आर नॉट मेड बाय द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। ये कई बार कहते हैं ना घटनाएं ही आपको बनाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके रिस्पॉन्सेस, आपकी रिएक्शंस उन घटनाओं में क्या रहे, उन इवेंट्स में क्या रहे, वो आपको बनाते हैं। पीपल आर मेड अप ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस, नॉट ऑफ द इवेंट्स। नाउ अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, आपकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिनके रिस्पॉन्स के कारण आज आपको गुस्सा आता है अपने डिसीजन पे, आज आपको लगता है कि ये मेरा रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था। हुई होंगी। अगर वो रिस्पॉन्स बदल जाता तो क्या जिंदगी बदल जाती? 5 मिनट का टाइम देता हूं, चलो 2 मिनट का टाइम देता हूं। थिंक, राइट डाउन द इंसिडेंट एंड द रिस्पॉन्स एंड द आउटकम। फटाफट करो। वो जो काम किया वो कर लो ना। पूरी जिंदगी आपने साथ वालों के साथ थोड़ा बिताई है। इवेंट इसी के साथ, इन्हीं के साथ होना हुआ है। इनके साथ तो होगा एक इवेंट और आपके साथ भी। तीनों को इकट्ठी डांट पड़ेगी, इकट्ठी पिटाई होगी, तीनों के घर में इकट्ठी कंप्लेंट जाएगी। फिर पता लगेगा तुम तीनों में से कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है उस पर। सारे अपना काम नोटबुक में लिख रहे हैं, इवेंट और रिस्पॉन्स को, ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं, इवेंट डिस्कस कर रहे थे। बचपन से उसी के घर में पला पड़ा है तो।
ये भी लिखना कि अगर उस पे रिस्पॉन्स चेंज हो जाता तो क्या रिजल्ट या आउटकम चेंज हो जाती, और होती तो क्या होती, आउटकम अच्छी हो जाती, थोड़ा फर्क तो पड़ता। क्या करें? बताओ ना, ऐसे पर्सनली मैं पूछूंगा, लिख लो, बताओ। Like my younger brother came from the market and he was just like exhausted and tired from the heat, and he asked me for a glass of water, but I refused it and I went into my room. Then he got angry and something and he crumbled my grilled sandwich which I made, and like I also got anger and I threw his cream rolls which he brought from the market for himself and myself, and we got angry both and we didn't share each other's snacks because we just threw the food. And so if I just give him a glass of water, then we would be sharing each other's snacks and we would be happy. एक चीज और भी हो सकती है, सपोज करो ग्लास ऑफ वाटर नहीं था, उसको गुस्सा आ गया, उसने आपका सैंडविच क्रम्बल कर दिया, उसके बाद आपको गुस्सा आना नेचुरल था, या आप उस गुस्से का भी जो रिएक्शन है चेंज कर सकते थे। तो आपको बहुत सारे मौके मिले इसके अंदर, पहला पानी देना, दूसरा गुस्से की जगह कुछ और रिस्पॉन्स करना, तीसरा, मतलब वो 3-4 मौके आपको सही से मिले, परंतु आपने सारे खो दिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? None of them have snacks. None of you had snacks। ये तो छोटी सी चीज है आपने सोची, बट ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ में भी हुई। नुकसान खाने का, पैसे का, बेचारा धूप में जाकर लेकर आया, आपका डबल नुकसान, क्योंकि वो अपने लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए लाया था क्रीम रोल। खाने पीने की चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखा, खाने पीने की चीज के लिए मैंने 5 मिनट आपके साथ नेगोशिएट किया रिकॉर्डिंग के लिए। चल, वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। So this all depends on our attitude। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कहानियों के से मैंने बताई है, so that you keep this in your mind and help। जब भी आपको गुस्सा है ना, जब भी जिस भी क्षण आपको गुस्सा है, अपने आप से पूछो, कैन आई चेंज माई रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू दिस इवेंट। एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो, कैन आई चेंज रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन दिस सिचुएशन। क्या मेरा रिस्पॉन्स और रिएक्शन और हो सकता है? आई एम श्योर यू विल, इंग्लिश में कहावत है, वन मोमेंट ऑफ द एंगर कैन टेक योर एंटायर लाइफ। मतलब गुस्से का एक क्षण और उस क्षण में लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। तो आई एम श्योर जब भी आप गुस्सा हो, आप अपने आप से ये पूछोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी एक बड़ी खास बात है, कभी भी गुस्सा ऐसे नॉर्मली नहीं आता। गुस्सा काम कोई और कर रहे हैं, गुस्सा हमको आता है। हमें अपने काम पे गुस्सा बहुत कम आता है। आप आए, अगर आपको अपने काम पे गुस्सा है ना, तो आधे सेकंड में चला जाएगा। दूसरों के काम पे गुस्सा आता है, कैसे? आप देख लो मूवी अपने रूम में, अपने टेलीविजन, आपका भाई आता है, चैनल चेंज करता, आपका भी चैनल चेंज हो गया, आप गुस्से में। एग्जाम्पल दे दो, मेरे कजिन चाचा she would be speaking something on the phone, I don't bother about it. It is a spam call. She would tell me a lot of schemes and other things. Let her tell the scheme and let us continue the others. My cousin Chacha and I, we both were supposed to go to Jindal Chowk, HDFC Bank, I think 10 years before or 12 years before. His daughter was pursuing and registering herself for the chartered accountant. तो ड्राफ्ट बनाना होता है। 12 साल पहले ऑनलाइन बैंकिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो चाचा जी बिलोंग्स टू उकलाना, उनका हिसाब कोई अकाउंट ही नहीं है, ड्राफ्ट बनाना मुश्किल। ड्राफ्ट हमेशा मेन ब्रांच से, आप जिस ब्रांच में आपका काम होता है वो बनाते रहते हैं। तो मैं कहा चलो आप मेरे बैंक में चलते हैं, हम बनवा लेते हैं। चले गए, चाचा जी ड्राइव कर रहे थे, मैं चाचा जी के साथ बैठा।
एक आप जैसा नौजवान, उस समय मेरे जैसा, उस समय तो आई वाज यंग मैन, 12 साल पुरानी बात है। एक आप जैसा नौजवान बाइक ऐसे लेके गया, शू 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 शू, और एक्सीडेंट, 2 गाड़ियां भिड़ते भिड़ते बच गई, एक हमारी थी, चाचा जी इंडियंस है, 2 गाली ना निकले ना गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चलेगी। ड्राइवर लेस कार के अंदर अगर गालियां फीड नहीं की गई भारत में, तो ड्राइवर लेस कार विल फेल। जो उस पे पैसेंजर बैठा होगा वो बेचारा सोचेगा गाड़ी चल कैसे रही, गाली नहीं आई इतनी देर। ये तो दिस इज नेचुरल है। एक एमसी बेसी कुछ ऐसे गाली ना निकले। चाचा जी पहले 2-3 शुद्ध भाषा के अंदर गाली, फिर चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, सुन तो नहीं, तेरे को ये वो देख नहीं सकता। मैं चाचा जी को बोला, मैं कहा चाचा जी वो ना हासी पहुंचने वाला हो गया, जितनी तेज बाइक चला रहा है, आप यहाँ से बोल रहे हो। अगर वो पास भी खड़ा होता ना, आपकी बात नहीं सुनता था। गाड़ी के शीशे बंद है, उसने हेलमेट पहन रखा, और क्या पता ईयरफोन भी लगा रखे हो, जवान लड़का होगा। मैं कहा आप, उसको क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। गुस्सा किसको आ रहा है आपको, एनर्जी किसकी खराब हुई आपकी। मैं कहा दूसरी चीज, अब सोचो कि वो इतना जल्दी में क्यों जा रहा था, कि अब तक घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, विशाल जॉब करता हो, फोन आ गया हो मम्मी का पापा का, भाई ये चीज होगी, फटाफट निकल रहा है। कुछ भी हो सकता है ना। पहले चाचा बहुत गुस्से में, जैसे ही मैंने वो मेडिकल इमरजेंसी का एग्जांपल दिया था, चाचा कहते हाँ हो भी सकता है। अब सिचुएशन तो सेम थी। चाचा ने सिर्फ एक एंगल से देखा कि वो इतनी तेजी से गया, मैंने दूसरे एंगल से भी देखा, पता नहीं क्यों गया, सब ठीक तो है। आपके घर से जब बच्चा बहुत तेजी से बाहर निकलता है ना, तो मम्मी पापा एक ही एंगल से देखते हैं, देख हमारी बात नहीं सुन रहा, दोस्तों का फोन आया होगा, निकल गया। और जो घर में बच्चे की फेवर में जो होगा ना आदमी, क्या पता क्यों गया, किसी को बुक देने गया, कोई इमरजेंसी हो, जाने दो। 2 अलग अलग सिचुएशन तो एक ही, रिएक्शन 2 अलग अलग। अब मैं इससे बताना चाहता हूँ, चैनल तो किया किसी और ने चेंज, गुस्सा आपको आया, बाइक तो कोई और गलत तरीके से चला के गया, और आपकी बात सुन भी ना रहा, गुस्सा आपको आया। इसका मतलब आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, औरों के हाथ में। और मुझे पता लग गया ना, किसी और व्यक्ति के इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, और वो व्यक्ति को मैं कुछ खास पसंद नहीं करता। जिसको आप पसंद नहीं करते होगे ना, और वो आपको पसंद नहीं करता होगा, तो आपकी खुशी उस व्यक्ति के लिए सबसे बुरी है। मेरे को ऐसा एक 2 व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ, और हैं भी मेरे रिलेटिव, फर्स्ट कजिन। मेरे को कहीं भी शादी पार्टी ब्याह में मिलेंगे, मैं जाके खड़ा लेता हूँ, भैया ठीक हो सब, गाड़ी पे वॉश कराई थी गाड़ी, आई जस्ट से वो चीज नहीं। मैं कितनी भी प्रशंसा कर लूं उनको, उनके अंदर क्या हो गई, 5 मिनट मेरे साथ खड़े हो गए ना, उनका मूड खराब। इसका मतलब उनके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मेरे पास, और मुझे पता है तो आई कैन प्ले विद हिज इमोशंस। आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल भी किसी ना किसी के पास है। आप जिस चीज से चिढ़ते हो, आपके दोस्त उसी चीज से चिढ़ाते हैं आपको, राइट? क्योंकि उनको पता है भाई इसका रिमोट तो हमारे हाथ में, चल मजे ले, और आप उनको मजे देते हो। जैसे आपके पेरेंट्स का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, उनको जिन चीजों पे गुस्सा आएगा वो आप पक्का करोगे। जैसे आई हैव अ क्वेश्चन, क्या आप टीवी हो? The remote can be given to others. Can't you keep your own emotions remotes with yourself? आपको फर्क ही ना पड़े, आप न्यूट्रल रहो। बाइक पे कोई चला गया, अपा ने क्या करना? आपको मेरी बात अच्छी लगी बुरी लगी, मैंने क्या करना? अपा ने अपना काम करना। अपने को एक चॉकलेट मिलनी चाहिए वीडियो के, कुछ मर्जी सोचते रहिए। Why would I give my remote of emotions to anyone? Simple. Keep remote of your emotions with yourself. अब कई बार आप मन में बोल नहीं सकते ना, मन में बुड़बुड़ करते रहते हो। जैसे मैंने आज तनिष को डांट दिया, अभी तीनों बातें कर रहे थे। अब तीनों के में से एक व्यक्ति जरूर अंदर मास्टर है ना, दोस्त होता तो देखता,
मास्टर भी ऐसा कुछ बोलूंगा तो क्लास में बोल देगा, देख लूंगा कोई नहीं, एक बार पास करने दो, एक बार यहाँ से निकलने दो सेंटर से, 3 महीने 6 महीने देख लो, कोई ना कोई अंदर अंदर बूट बूट लगाओ। मेरा क्या लेगा? नुकसान किसका कर रहा है? अपना। इमोशंस किसके खराब हो रहे हैं? उसके मूड किसका खराब हो रहा है? उसका। मेरा कुछ ले रहा है? करने दो। राइट वीरेंद्र? वैसे कर नहीं रहे, तीनों अच्छे बच्चे हैं, कर भी रहे हो तो अपना कोई मतलब। The question here, point here is, do you have remote of your emotions with yourself? है आपके पास आपके इमोशंस का रिमोट अपने पास? किसी ने पेरेंट्स को दिया है, किसी ने दोस्त को दिया है, किसी ने लाइफ पार्टनर को दिया है, किसी ने गर्लफ्रेंड को दिया है, किसी ने बॉयफ्रेंड को दिया है, जिंदगी खराब। मैं अग्री करता हूं कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लाइफ पार्टनर का अफेक्ट आपकी जिंदगी में आता है, बट इतना तो नहीं आना चाहिए। There should be a limit of that effect on your life. Otherwise, life is going to be hell. खुशी ऐसे नहीं मिलती। खुश रहना is an art. और आर्ट की पहली चीज मैंने बताई थी, you first need to change the response, और रिस्पॉन्स चेंज होगा जब आप अपने चीजों को देखने का नजरिया बदल लोगे। दूसरी खुशी का एक सबसे अच्छा साधन ये है, remote of your happiness should be in your hand. गुस्सा is not natural, happiness is natural. चलो खुश नहीं रह सकते तो न्यूट्रल रह लो। तीसरी चीज, कई बार आपको ऐसा लगता है ना, दोस्त ने मेरे को फोन ही नहीं किया, मेरा जन्मदिन था, सुबह से लेकर अब तक कोई फोन नहीं आया, अपनी शादी में नहीं बुलाया, जब काम होता तो बड़ा पीछे पीछे रहता है। भाई दुनिया है मतलब, इसको आज समझो या 10 साल के बाद समझो, हर व्यक्ति काम से है। ट्रू, किसी को आपके साथ रहना पसंद है तो आपके साथ रहेगा जब तक उसको आपके साथ रहना पसंद है। किसी और के साथ रहना पसंद होगा तो आपको छोड़ के वहां चला जाएगा। आपने क्या बांधा हुआ उसको? डू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? भाई लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फिश। एज फास्ट यू अंडरस्टैंड, यू गेट बेटर इन द लाइफ। इस दुनिया में हर आदमी स्वार्थी है और एक ही रिलेशन काम करता है यहाँ पे, गिव एंड टेक, चाहे पेरेंट्स और बच्चों का भी क्यों ना हो। पेरेंट्स ने आपको दिया, वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने 25 साल तक आपको दिया, अगले 25 साल तक आप भी उनको दो। उन्होंने 25 साल तक आपका ध्यान रखा, आपकी सेवा की, आपकी जरूरतें पूरी की, अगले 25 साल तक आप उनकी सेवा करो, उनकी जरूरतें पूरी करो। दिस इज ट्रू। पेरेंट्स आर सेल्फिश। I'm a father, I know I'm a selfish. I named my son which I liked, not which he liked. Yes or no? आप मानो या ना मानो, आपकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड है। पूरी दुनिया में हर इंसान सेल्फिश है। इस बात को आप बहुत जल्दी समझ लो। सो लोग आपको फोन करें, जन्मदिन की मुबारकबाद दे ना दे, शादी पे बुलाए ना बुलाए, अच्छी बात। मुझे कोई नहीं बुलाता ना, अगर मेरी फैमिली में वाइफ है कि देखो उन्होंने नहीं बुलाया, अच्छी बात है, 1100 का शगुन बचा। तैयार होने लगती तो 2 घंटे उसमें लगाती, 200 का मेकअप बचा। तेरा बेटा तेरे को तंग करता, 100 रुपए का तेरा खून बचा। उसको लेके मैं घूमता रहता, 100 रुपए का मेरा खून बचा, 200 का पेट्रोल बचा, सारा खर्चा मिला लो 2500 रुपए बच गए। क्यों जाएगा? Will you call that friend only to your occasions? पक्का? मुझे उसको बुलाने में ज्यादा मजा आएगा जिसने आपको नहीं बुलाया। दिखाओ तो सही, आप खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को यह एहसास हो जाए ना कि उसने आपको नहीं बुलाया और आपको फर्क नहीं पड़ा, उसको पक्का फर्क पड़ेगा इस बात से। डू यू अंडरस्टैंड? इन रियलिटी एक दो दोस्तों में, चाहे वो किसी भी लेवल के दोस्त हो, नॉर्मल फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ, और इवन पेरेंट्स एंड किड्स, अगर पेरेंट्स को लगे ना मेरी किसी बात से इसको फर्क नहीं पड़ रहा, उस बात पे गुस्सा ज्यादा आता है पेरेंट्स। अगर आपको लगे ना आपके दोस्त को आपकी उदासी से और खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको गुस्सा आएगा,
क्यों? अगर आपको ये पता लग जाए कि आपने किसी पे गुस्सा किया बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका, आप परेशान ज्यादा हो गए। अंडरस्टैंड? तो जब उसने मुझे नहीं बुलाया और मैंने दिखा दिया, मेरे को कोई कतई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को कोई मतलब नहीं है वो मुझे बताए ना बताए, तो उसको लगेगा यार इसको कुछ तो मतलब तो होना चाहिए, इसको पूछना तो चाहिए, इसको रिएक्ट तो करना चाहिए। और आप रिएक्ट ही नहीं करते उस बात पे, उसको रिएक्ट करेगा। किसी दिन तूने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो आप कह सकते हो रिएक्ट उस पर किया जाता है जो अपने होते हैं। तू शादी पे बुलाता, अपना होता तो रिएक्ट करता, तूने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैंने तेरे को बुला लिया, मैं तेरे को अपना समझता हूँ, तू कर, ऐश कर, शकुन दे, काट लिया। माय पॉइंट हियर इज, व्हाई डू वी बोदर्ड बाय पीपल? यहां पे मैं आपको एक बात दिखाता हूं, लॉन्च योरसेल्फ एज अ रॉकेट। रॉकेट जब साइंस स्टूडेंट्स कितने आते हैं, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है? रॉकेट पहले उड़े, कुछ दूरी पे जाने के बाद एक इतना सा हिस्सा अपने का छोड़ देगा, सेपरेट हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और हिस्सा सेपरेट हो जाएगा। इतना बड़ा रॉकेट जो इस क्लासरूम के साइज से 4 गुना है, जब वो ऊपर पहुंचेगा ना, इस ट्राइपॉड्स के साइज जितना होगा, क्योंकि उसको पता है इफ यू वांट टू रीच एट अ हाइट यू नीड टू ट्रेवल लाइट। रिपीट करता हूं, वाक्य में अच्छी लाइन बन गई। इफ यू रिदम आ गई, इफ यू वांट टू रीच एट अ हाइट यू नीड टू ट्रेवल लाइट। जितना आप हल्का होगे उतना ज्यादा ऊपर जाओगे। और ये इमोशंस तो आपको छोड़ने पड़ेंगे। दिस यू नीड टू लीव द बैग ऑफ इमोशन दैट ही डिड नॉट गिव मी द कॉल, ही डिड नॉट इनवाइट मी, ही सेड दिस टू मी ऑन दैट डे। जिंदगी खराब हो गई। ट्रू, उसने नहीं बुलाया, अच्छी बात है, आपके पास 2 तरीके, या तो आप उसको बुला लो या आप उसको ना बुलाओ। मन में रखना बातों को क्या फायदा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये रिमोट कितनी देर आप इसको ऐसे पकड़ के रख सकते हो? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई वेट नहीं है इसमें। कितनी देर रख सकते हो? तब भी आधे घंटे के बाद आपकी पूरी बाजू में दर्द होगा, 1 घंटे के बाद बाजू यहाँ पे टूटनी शुरू हो जाएगी, 3-4 घंटे रखा तो वो बाजू अगर नहीं हिलाओगे 4 घंटे तक तो उसके बाद हिलेगी भी नहीं, 6-7 घंटे के बाद क्या आता है ये हिस्सा ही पैरालाइज है। तो रिमोट हल्का सा, ऐसे क्या होती है, बातें तो होती है छोटी छोटी, उसने बुलाया नहीं, आप गए नहीं, आपने बात नहीं की, बातें तो होती है छोटी और आप उसको पकड़ के रख लेते हो, तो होगा क्या, रिश्ता पैरालाइज हो जाएगा कुछ समय के बाद। वही छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है। इस रिमोट का वेट सेम 100 ग्राम होते हुए भी 4 घंटे के बाद इस रिमोट का वेट 400 किलोग्राम, फिर इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। माय गेट द पॉइंट इज, अगर आज आपके मन में बात है तो उसी समय फोन करो, बता दो, मन में मत रखो। ट्रेवल लाइट, मन में रखोगे तो बैग ऑफ इमोशंस इट इज डिफिकल्ट टू कैरी। अच्छा, आपको ऑप्शन देता हूं मैं, आपके पास 10 बड़े बड़े बैग सामान से भरे हुए, आपकी खुद की गाड़ी, उसमें रख के बस स्टैंड पे जाना है आपको, बस में सारे बैग ट्रांसफर करने हैं, बस में बैठे हैं, चले जाना है। दूसरा ऑप्शन, आपके पास कुछ नहीं है एक नोटबुक के अलावा, ऑटो में बैठना है, बस स्टैंड जाना है, बस पे बैठना और चले जाना है। क्या करोगे? अब क्या चूज करोगे? अपनी गाड़ी में 100 बैग के साथ जाना, 10 बैग के साथ जाना, या ऑटो में एक नोटबुक के साथ जाना? एक नोटबुक के साथ, चाहे ऑटो कंफर्टेबल ना हो तो भी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। माय पॉइंट हियर इज ट्रेवल लाइट। Traveling by the truck or traveling by your own car, car is way easier because it is a light vehicle. The lighter the vehicle is, the more you enjoy. The lighter the life is, the more you enjoy. So leave the bag of emotions all here and travel light. Then only you can reach a height. Good rhythm यार again. इसकी किसी कोटेशन बना के डालूंगा आज, नीचे लिख दूंगा कॉपीराइट ऑफ पंकज, थॉट बाय चांस। सारी कोटेशन बाय चांस ही बनती है, बाद में कोटेशन बन जाती है। मैं लिखूंगा, मैं तो पॉपुलर आदमी हूं नहीं, कोई पॉपुलर आदमी उसको देख के यूज कर लेगा, कोट उसकी हो जाएगी। ट्रू, अब जो आज कॉकरोच वाली कहानी सुनाई, आज से 17 साल पहले भी मैंने सेम कहानी सुनाई।